Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to Knowledge and Analysis, which is a project of the Academe and Educational Setup. My name is Ibrahim Farooqi. The agenda of this segment today is Chinese investment in Afghanistan. These are the aims of today's talk. Highlight the economic opportunities available to China in post-US Afghanistan. Secondly, underline the potential mutual benefits for Afghanistan and China. And lastly, identify and explain the challenges facing Chinese investments in Afghanistan. If we see the background of this development between China and Afghanistan, the Chinese engagement in Afghanistan, in 2020, after the peace agreement between the US and Afghan Taliban in Doha, the US and its allied forces, that is the NATO forces, withdrew from Afghanistan, from the south central country in August 2021. This withdrawal resulted in the creation of a strategic space for China in Afghanistan. यूएस के विड्रॉल के बाद चाइना के लिए अफगानिस्तान में एक स्ट्रेटेजिक स्पेस क्रिएट हो गया एंड एज वी ऑल नो चाइना इज अ ग्लोबल राइवल ऑफ यूएस strategically, politically, as well as economically. If we talk about Afghanistan, Afghanistan is facing multiple crises. बहुत सारी crises को face कर रहा है अफगानिस्तान. Firstly and most importantly, the Western sanctions, which hit already ruined Afghanistan because of wars. Secondly, the US and the Western world, that is the allies of the US, they froze Afghanistan's assets, the foreign exchange reserves of around $7 billion US. And thirdly, the earthquake and flash floods which hit Afghanistan last year. If we talk about the two countries, Afghanistan and China, they are neighbors, they are direct neighbors, and they are joined by a very small border along the Wakhan corridor in the far northeast of Afghanistan. And both the countries, as far as the relations are concerned, they enjoy good bilateral relations without any major trouble. If we talk about Afghanistan and the engagement of Afghanistan and China, especially in the economic sphere, the latest development is the oil extraction deal signed between China and Afghanistan in Kabul last January. $540 million की oil deal है, जिसके मुताबिक चाइना की जो फर्म है सेंट्रल एशिया पेट्रोलियम एंड गैस कंपनी, दे विल ड्रिल फॉर ऑयल इन नॉर्दर्न अफगानिस्तान. शुमाली अफगानिस्तान में वो ड्रिलिंग करेंगे. ये अफगान तालिबान की अफगानिस्तान की में जो उनकी काबुल में उनके रिटर्न के बाद जो है वो पहली मेजर एनर्जी डील है जो कि अफगानिस्तान ने साइन की है. अमो दरिया ऑयल बेसिन कहलाता है. ये नॉर्दर्न अफगानिस्तान के इलाके में एक ऑयल रिच रीजन है जिसको अमो दरिया ऑयल बेसिन कहा जाता है. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, जिसमें इसमें 3 अफगान प्रोविंसेस को, अफगानिस्तान के प्रोविंसेस को जो है वो अंडरलाइन करके दिखाया गया है. दिस इज द ऑफ कोर्स द मैप ऑफ अफगानिस्तान. जोजगान, सारेपुल और फरियाब, ये वो प्रोविंसेस हैं जहाँ पर ये जो चाइनीज फर्म है वो ड्रिलिंग करेगी. अफगानिस्तान के क्रूड ऑयल रिजर्व्स $1.6 बिलियन बताए जाते हैं, जो कि न सिर्फ नॉर्दर्न अफगानिस्तान में बल्कि अफगान ताजिक बॉर्डर पर, अफगानिस्तान ताजिकिस्तान के बॉर्डर पर भी एक बेसिन है, वहां पर भी ऑयल रिजर्व्स मौजूद हैं. अफगानिस्तान के ऑफ कोर्स अफगानिस्तान इज रिच इन अनएक्सप्लोर्ड मिनरल्स. जो मिनरल्स हैं ऑफ कोर्स वो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड हैं, जिसमें गैस, कोल, आयरन ओर, कॉपर, गोल्ड, लिथियम, यूरेनियम, बॉक्साइट, कोबाल्ट, क्रोमियम, जिंक, सल्फर, जेमस्टोन्स, जिप्सम, मार्बल, ये बहुत बड़ी मकदार में अफगानिस्तान में पाए जाते हैं. स्पेशली लिथियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है फॉर बैटरीज इन सेल फोन्स एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, विच इज द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड. इसके अलावा रेयर अर्थ मेटल्स जो कि
तकरीबन 15 और या 17 की तादाद में हैं, ये भी अफ़गानिस्तान में पाए जाते हैं और ये हाईटेक इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होते हैं। ये तमाम रिसोर्सेज जो अफ़गानिस्तान की मिनरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये इनकी जो वैल्यू है वो तकरीबन $3 ट्रिलियन बताई जाती है अकॉर्डिंग टू 2010 एस्टिमेट। ये किसी भी कंसोर्शियम के लिए, किसी भी मुल्क के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। चाइना, if we talk about China, it's a global economic power and it is the biggest exporter. Economic growth is exponential economic growth होती है इनकी। इस currently जो है वो तकरीबन 8+ economic growth है इनकी, 8+%। Foreign exchange reserves are $3 trillion plus। Top global level investor है। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें चाइना में, तो उसमें भी चाइना का तीसरा नंबर आता है दुनिया में अकॉर्डिंग टू IMF फिगर्स ऑफ 2021। व्हेन वी टॉक अबाउट चाइनीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको वन बेल्ट वन रोड प्रोग्राम भी कहा जाता है, इट्स अ मेगा ग्लोबल लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इंटर रीजनल एक्टिविटी कनेक्टिविटी प्लान, जो कि चाइना ने 2013 में लॉन्च किया था फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन 150 स्टेट्स। दुनिया के 150 के करीब रियासतों में चाइना इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहा है और ये इन्होंने लॉन्च किया था 2013 में। इसको इन कंट्रीज में, ये 150 ममालिक में इन्वेस्टमेंट्स के लिए जाहिर है कि चाइना को कनेक्टिविटी की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है। इनको कनेक्ट करने के लिए, चाहे वो मैरीटाइम रूट्स हों या लैंड रूट्स हों, इनको कनेक्ट करने के लिए चाइना को बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और चाइना इस पे बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि आप मैप में ग्रे लाइन की फॉर्म में देख सकते हैं, ये ट्रेड रूट जो जिस पे काम चल रहा है। इसके अलावा डिफरेंट एरियाज में विच यू कैन सी ऑन द मैप, स्टार्टिंग फ्रॉम ईस्ट, फार ईस्ट चाइना, साउथ एशिया, and of course Horn of Africa, मिडिल ईस्ट, और इसी तरह इवन मॉस्को भी से भी टच करता है ये इनका BRI, और फिर ये यूरोप तक जाता है। तो इस बहुत बड़ा प्लान है चाइना का। तो ये अफगानिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं, इट इज़ पार्ट ऑफ दिस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अगर हम म्यूचुअल बेनिफिट्स की बात करें चाइना और अफगानिस्तान के लिए, इन द केस ऑफ चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स इन अफगानिस्तान, चाइना के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि अफगानिस्तान एक बहुत बड़ी लोकेशन, बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर वाक़ है। हार्ट ऑफ एशिया कहा जाता है अफगानिस्तान को। इसके अलावा एक चाइना का जो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है, उसको एक्सटेंड करने में चाइना को बहुत हेल्प मिलेगी। मुस्लिम वर्ल्ड में चाइना की रेपुटेशन बहुत बढ़ेगी। इसके अलावा अफगानिस्तान में जो है वो अफगानिस्तान की अगर हम बात करें, तो अफगानिस्तान में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ज़रूरत है, इकोनॉमिक बूस्ट की ज़रूरत है, मच नीडेड, उसके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा अफगानिस्तान के लिए। पीस, रिस्टोरेशन ऑफ पीस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इसके अलावा सीपेक लिंक, पाकिस्तान में जो सीपेक बन रहा है, दैट इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उससे भी चाइना अफगानिस्तान को लिंक करने में जो है वो मदद मिलेगी, बहुत बेनिफिट मिलेगा। और बाय डूइंग ऑल दिस, Afghanistan can, of course, enhance its standing in the, of course, international community। इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपने स्टैंडिंग को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्पफुल साबित होगा ये। अगर हम चैलेंजेस की बात करें फॉर चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स इन अफगानिस्तान, तो बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस चाइना को फेस करने पड़ सकते हैं। सबसे पहला है सिक्योरिटी चैलेंज। और चाइना एक ऐसे कंट्री में इन्वेस्ट करने जा रहा है जो कि हमेशा से जंगो जदल का शिकार रहा है, सिविल वॉर की वहाँ सिचुएशन रही है। दो मेजर पावर्स ने वहाँ इन्वेजन्स की है इन द 1970s एंड 80s, सोवियत यूनियन, और फिर 9/11 के बाद 2001 टिल 2021 of US and allied forces in Afghanistan।
इन दोनों जंगों की वजह से, और फिर जो इंटरनल वॉरफेयर उनके यहाँ रहा फ्रॉम लेट 1980 टिल 1996, तो इसकी वजह से अफगानिस्तान में जो है वो सिक्योरिटी के इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अलकायदा, इसके अलावा अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, खुरासान प्रोविंस, नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट, और फिर उनकी ट्राइबल वॉर्स, ये सारे जो ग्रुप्स हैं इनकी भी अपने अपने जो हैं वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट्स हैं। तो इसकी वजह से अफगानिस्तान में सिक्योरिटी का इशू बहुत बड़ा चैलेंज साबित होगा चाइना के लिए। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, सियासी गैर यकीनी सूरत हाल अफगानिस्तान में पाई जाती है। और ऑल्दो के अफगान तालिबान को 1.5 साल हो चुका है अफगानिस्तान में हुकूमत करते हुए आफ्टर देयर रिटर्न टू पावर इन काबुल, लेकिन अभी भी वहाँ पर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी पाई जाती है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर क्लैशेस जो कि 9/11 के इंसिडेंट के बाद से, 9/11 की वॉर, जो वॉर अगेंस्ट टेरर के बाद से शुरू हुए और आज तक जारी, ऑफ कोर्स किसी न किसी फॉर्म में जारी हैं एवरी नाउ एंड देन, ये भी अफगानिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और चाइना के लिए बहुत बड़ा चैलेंज साबित होगा कि हाउ टू मूव इकोनॉमिकली इन अफगानिस्तान वाइल फेसिंग दिस सिचुएशन। फिर उसके अलावा वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से जो अपोजिशन है अफगान चाइना को, वो भी एक कांस्टेंट एक चाइना के लिए एक इरिटेंट है in its economic engagement with अफगानिस्तान। उसके अलावा अगर हम मज़ीद बात करें तो अफगानिस्तान की इकोनॉमी जो है वो बिकॉज ऑफ वेस्ट ऑलरेडी वीक थी, और जो वेस्टर्न सैंक्शंस हैं उसकी वजह से चाइनीज़ के लिए वो अफगानिस्तान में इन्वेस्ट करना वहाँ पर बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन इस सिलसिले में बहुत मुश्किल होगा अदर देन उनकी मैन पावर के सिलसिले में अफगानिस्तान में बहुत जो है चाइना के लिए बहुत होपफुली हेल्पफुल साबित होगा वो अफगानिस्तान। लेकिन जहाँ तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन की बात है, वो अफगानिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। चाइना को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी टू क्रिएट हेल्दी एटमॉस्फेयर एंड लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन अफगानिस्तान। इसके अलावा अफगानिस्तान की जो नॉन कोस्टल जियोग्राफी है, एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, चारों तरफ से मुख्तलिफ ममालिक से सराउंडेड है, कोई कोस्टल लाइन नहीं है अफगानिस्तान की, एज यू कैन सी इन द मैप ऑल्सो। तो इस वजह से भी जो लॉजिस्टिकल हेल्प है वो अफगानिस्तान को नहीं मिल सकती है, और इसके लिए चाइना को ही इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी टू क्रिएट कनेक्टिंग पॉइंट्स फ्रॉम अफगानिस्तान टू अदर कंट्रीज अराउंड अफगानिस्तान। फिर इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी की जो जनरेशन है अफगानिस्तान में वो डिपेंडेंट है ऑन नेबरिंग कंट्रीज। वहाँ से वो जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और फिर वो ट्रांसमिट होती है टुवर्ड्स अफगानिस्तान। ये भी एक बड़ा मसला है अफगानिस्तान के लिए। तो चाइना को इस एनर्जी सेक्टर में भी काम करना होगा अफगानिस्तान के। फिर रेलवे का नेटवर्क बहुत लिमिटेड है अफगानिस्तान का, ये भी एक बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है फॉर लॉजिस्टिकल ऑपरेशंस। फिर इसके अलावा सिंकियांग का जो इशू है नॉर्थ वेस्ट चाइना में, एज यू कैन सी इन द मैप, ये एक बहुत बड़ा इलाका है जहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन के अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट्स वहाँ चाइना की तरफ से ह्यूमन राइट्स वायलेशंस बहुत होते हैं। इसको भी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एक सिग्निफिकेंट हर्डल है चाइना के लिए फॉर मूविंग टुवर्ड्स इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन चाइना, इन अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान एक कंजर्वेटिव कंट्री है और अफगानिस्तान का बॉर्डर भी सिंकियांग की तरफ से ही अफगानिस्तान चाइना से मिलता है। तो ये चाइना के लिए एक चैलेंज हो सकता है टू ऑफ कोर्स मैनेज करना सिंकियांग को, और वाइल मैनेजिंग सिंकियांग सिक्योरिटी एंड सोशल इश्यूज इन अफगानिस्तान, सॉरी सिंकियांग चाइना में, सॉरी अफगानिस्तान में जो है वो किस तरह अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस को जो है मूव फॉरवर्ड की तरफ आगे जाना, और इसको किस तरह जो है वो चाइना अपनी अपनी स्टैंडिंग को किस तरह मेंटेन करेगा, ये एक बहुत बड़ा जो है चैलेंज साबित होगा चाइना के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग नॉलेज एंड एनालिसिस। Inshallah, we'll be returning with some other interesting topic soon. Take care. Allah Hafiz.